Mr. Abhishek Kumar, who is an assistant commandant trainee with CRPF right now. And among all other factors in his profile, what makes this moment a very proud moment is he is a DAV alumnus. So for parents and teachers, it is the proudest moment when you see your children coming back as chief guest in some forum. Your children coming back to address the gathering. So it's a very proud moment. So, I'm feeling that kind of thing. And coming back to today's session, as soon as the results are declared, or as soon as we step into class 10, we start thinking, what next? Many of us are blessed that we get some guidance from some people who have got correct knowledge about it. Others depend on the knowledge from either of their friends or uninformed sources. Resultantly, either we are misdirected or we are confused. And we just limit ourselves to what our friend X, our friend Y, our friend Z has chosen from themselves. It may not be the right career choice, subject choice for me, but I end up with that subject in class 11 because my friend X has chosen that subject, my friend Y has chosen that subject, I should also study that. So at this junction, it is very crucial for us, the students who are there with us virtually, the students who are sitting here, it is very important for us at this junction to understand and then match our expectations, our competences with our career choices. You have to find out opportunities for yourselves. Careers are not created. You have to create careers for yourself. So that is very important. That is the whole purpose of this session. I have given a brief introduction why we are here and what we are going to know from this. And I once again welcome and also thank Abhishek Kumar for accepting our invitation. He is preparing for IAS and from that time he has taken out a lot of time. He has prepared wonderful presentation for you. So he has worked very hard. So I'm so thankful to you, Abhishek, for coming up with this wonderful solution and this putting out your best hand for our students. Thank you very much. Dr. Chakravarti is your academic coordinator and every time we always have a solution for whatever you come to him for. So we all are sitting together, so all those who are virtually there with us, please be alert, listen to what Abhishek has to present and let us all together make a very different future for all of us. Thank you very much. मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ about this career counseling and thank you very much Principal Ma'am and Ma'am for giving such a wonderful introduction about me and it could not be any better. So वापस इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है एंड जो सेशन रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है? So I'm not good at Odia, so I cannot speak and understand only a little bit of Odia, so in Hindi and English. Okay. So I hope that all of you are doing good in this difficult time of COVID-19 crisis. I mean, it is really a difficult time. It is taking toll on our mental health, physical health. बहुत सारे लोग घर से निकले नहीं है काफ़ी टाइम से and हम स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे and all and some of you may have lost your near and dear ones, so condolences for them. But it is a difficult time and it will pass. So just hold on tight and don't lower your guard. मतलब सारे precaution आप लेते रहिए, मास्क पहनना, सैनिटाइजर एंड ऑल दैट थिंग. अमिताभ बच्चन तो आपको बता ही दिया कॉलर ट्यून पे, तो प्लीज.
So now coming to our discussion about career counseling, I have curated my PDF in such a way that yes sir. अच्छा यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और कोई और भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? Only class 10? And those who are joining us virtually? Class 11. Okay, no problem. Fine. So, class 10 student, 11 student, I am just going to give a brief ideas about different career choices. I am not going to get deeper into that choice. That is the call that you have to make, and I think that is more appropriate after you qualify class 12. So अभी आपको बस brief ideas मैं दूंगा इसके बारे में कौन-कौन से career choices है that you can take. So let's start with our slide. So what are the popular expectations? Like while growing up, we used to listen a lot of things from our parents. जैसे बहुत लोगों ने 3 Idiots देखा होगा, तो उसमें ये देखते हैं ना कि बच्चा जब when someone is born, then people used to label them कि ये इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, है ना, इस टाइप का कुछ. तो हमारे चॉइसेस भी उस टाइप से बन जाते हैं. So what are the popular choices that we have is like pilot, doctor, engineer, cricketer. मूवी देखने के बाद लगता है कि एक्टर भी बन सकते हैं. So these are some popular choices. Teacher, policeman, army man, है ना. But going ahead, जब आपको exposure मिलता है, आपको आइडिया होता है कि ये सब भी चॉइसेस है, ये मेरा हॉबीज है, इसको मैं आगे परस्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हमें पता चलता है कि देयर आर मेनी अदर चॉइसेस विच आर वेरी गुड, फाइनेंशियली साउंड एंड इंटरेस्टिंग, लाइक यू नो एंटरप्रेन्योर, लॉयर, इवेंट मैनेजर nowadays, like these people are making good hefty money. So if someone is like कि मुझे पैसा कमाना है, I have to earn lot of fortune, so event management is a good option in hospitality sector, then chartered accountant, statistician and all that, modeling, politician, politics. कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पे पॉलिटिक्स में? कोई देखता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट? कोई नहीं. न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है? How many of you read newspaper like at least 1 or 2 a week? Yeah, good number of them. Hindi, English, which newspaper? Hindi, English. Nice. It is a good thing. You get to know a lot about current affairs and all. तो बहुत ज़रूरी है. So see, these are the lesser expected option from general public, है ना. But आप जब इसके बारे में रिसर्च करोगे, अपने हॉबीज को एक्सप्लोर करोगे, है ना, तो आपको ये सब भी पता चलेगा कि इस टाइप के भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. So going to the second slide. So what are the popular myths and common experience that we all face while making these choices? So अभी आप लोग का एज कितना होगा? 14, 15, on an average 16. तो इस टाइम पे कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना विद रिगार्ड टू योर करियर एट दिस पॉइंट, आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ वेरी अर्ली कॉल. अगर किसी को लगता है दे फील वेरी स्ट्रांगली कि नहीं मुझे यही बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, देन इट इज़ गुड. बट अगर हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा डिमेरिट होता है, क्योंकि हम सोशल प्रेशर में आके डिसीजन ले रहे हैं. इट may not be good for us. और मे बी जब आप हो सकता है इंजीनियरिंग में चले जाओ, कुछ लोग इंजीनियरिंग वो तो ट्रेंड बन गया है कि इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग में जाने के बाद बहुत लोगों को रियलाइज होता है कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, है ना. तो लेट अस सी सम पॉपुलर मिथ कि साइंस जो स्टूडेंट लेते हैं दे आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर. आई थिंक इट इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट वन कैन थिंक ऑफ, बिकॉज इन कॉमर्स रिसेंटली अभी रिजल्ट निकला है तो आप देख सकते हैं 97-98 परसेंटाइल लोग लेके आए हैं. और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो कॉमर्स के कट ऑफ 99% के ऊपर भी जाते हैं.
In no way these people are any inferior to science people and all. फिर एक ये कहा जाता है कि स्कोप बहुत है, साइंस में स्कोप बहुत है, टेक्निकल सेक्टर में स्कोप बहुत है। स्कोप सब जगह है, ऐसा सिर्फ टेक्निकल सेक्टर में नहीं है, इंजीनियरिंग में नहीं है, सब जगह स्कोप है। आपको जहाँ इंटरेस्टेड है आप वहाँ पे स्कोप बना सकते हैं। फिर साइंस फील्ड में लोगे तो सैलरी ज़्यादा मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। पीयर प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर है ना, कि मेरा चाचे का लड़का जो है वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है ना। ये एक पेरेंटल एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं आ जाता है, तो वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारे डिसीजन को। इट काइंड ऑफ ब्लर्स आपका जो थॉट प्रोसेस होता है अपने आप को लेके। फिर अच्छा ऐसा भी होता है कि एक बार आपने जो स्ट्रीम चूज कर लिया आपको चेंज नहीं कर सकते हो, ये गलत बात है, ये मिथ है, ये ऐसा होता नहीं है। यू कैन चेंज योर करियर चॉइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी ड्यूरिंग व्हेन यू आर परस्यूइंग बैचलर्स। आप जब क्या कहते हैं क्लास 12 के बाद जब आप बैचलर परस्यू करेंगे तो वहाँ पर भी आप करियर ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और चीज़ होता है कि क्लास 10 अच्छे से दे दो उसका लाइफ सेटल है, या क्लास 12 के बाद लाइफ सेटल्ड है, ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आर द वॉर विच आर वर्थ फाइटिंग फॉर। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सोशल स्टिग्मा, पीयर प्रेशर एंड ऑल जो दिखा दिए। लैक ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, लैक ऑफ रोल मॉडल। आप अपने आसपास सिर्फ इंजीनियर देखोगे तो आपको लगेगा कि इंजीनियरिंग ही अच्छा करियर है और कुछ है ही नहीं। बट अगर आप अपने आसपास देखते हो कि कोई आदमी मॉडल बन गया है, कोई स्पोर्ट्स में है, वी आर सीइंग गुड नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम उड़ीसा हु वेंट टू ओलंपिक दिस टाइम। यू नो एनीवन? हॉकी टीम, वुमेन हॉकी टीम, पता है किसी का नाम? एनीवन लाउडली? Gurjatkar. Yeah. And there's one girl from Odisha, Sundar girl. Anybody know her name? Yeah, please. Yeah, right. So these are the role models. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले तो आप सेल्फ एक्सप्लोर करिए एंड फिर आप देखिए आपके रोल मॉडल कौन है, आप किनको देख के आप इंस्पिरेशन लेते हैं। तो दीज आर द रोल मॉडल दैट यू शुड फॉलो। एंड देन प्रिडेटरी कोचिंग टैक्टिक्स एंड ऑल, कि पढ़ लो बेटा, नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे एंड ऑल दैट थिंग, इज आर नॉनसेंस। फिर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल कंसिडरेशन। इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम बिकॉज in India 90% of the population earn less than 8 lakh per annum. So in that amount it is very difficult to pursue higher education in field like medical, engineering, architecture, hospitality sector. So वहाँ पे फीस ज़्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। बहुत लोग को ये चाहिए होता है कि हमें जल्दी नौकरी मिल जाए, तो उनके लिए भी ऑप्शन है, आई विल टेल यू। फिर लैक ऑफ गुड करियर काउंसलिंग। तो आपको कहीं अच्छे से काउंसलिंग मिल नहीं पाता है, आपके पेरेंट या आपके पीयर हो गए या आपके मेंटर्स हो गए, या आपको प्रॉपर काउंसलिंग अगर नहीं दे पा रहे तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज अ स्लाइड अबाउट फैक्ट्स एंड डिटेल अबाउट द सो कॉल्ड पॉपुलर करियर चॉइसेस। ठीक है, देखो इंजीनियरिंग में मैं बता देता हूँ, जो लोग इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, आई मीन इफ यू वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, स्कोप है, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, बट सी देयर आर सम फैक्ट्स। वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो आईटी सेक्टर के तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्ट होता है। मे बी अगर आप कोर में लेना चाहो, आप मैकेनिकल परस्यू करना चाहो, सिविल परस्यू करना चाहो, बट अल्टीमेटली वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होते हैं वहाँ पे आईटी कंपनी ज़्यादा आती है, कोर की कंपनीज उतनी नहीं आती है। ठीक है, और कोर की कंपनीज आएगी भी तो वो 2, 3, 4 लोग को लेके जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इवन सिचुएशन इन IITs एंड NITs आर नाउअडेज अ लिटिल क्रीम। करिकुलम बहुत आउटडेटेड हो गया है, मतलब जो करिकुलम 1980s में, हो सकता है आपके फादर अगर परस्यू किए होंगे, आपके फादर मदर या कोई भी, जो 1980s में जो लोग जो करिकुलम पढ़े हैं, ठीक है, वही चीज़ आप भी पढ़ रहे हैं। यू आर गोइंग टू स्टडी इन 2024-23, तो आउटडेटेड करिकुलम है, उसके कारण
एक रिपोर्ट आया था नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट 2020, उसमें ये बताया गया है कि एट प्रेजेंट 80% ऑफ इंजीनियर्स आर नॉट एलिजिबल इनफ फॉर द जॉब। ठीक है, तो अगर आप अपने स्किल को उस तरीके से मॉडिफाई करते हो, नए जो मार्केट में डिमांड है, नई टेक्नोलॉजी का डिमांड है, अगर आप उसको सेटिस्फाई कर पाते हो, देन एंड ओनली यू आर एलिजिबल इनफ फॉर द जॉब इन इंजीनियरिंग। अच्छा, आर्म फोर्सेज anyone is here who want to go into armed forces? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वन। यहाँ पे जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर आई साइट एंड ऑल। इवन अगर थोड़ा बहुत इशू है तो इट कैन ऑल्सो बी डील, तो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। एंड अदर थिंग इज उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है उसके लिए आपको अपना पर्सनैलिटी पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, यू नो, स्पीकिंग स्किल एंड ऑल। तो लीडरशिप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एसएसबी में जाएंगे तो वहाँ पे लीडरशिप स्किल आपका देखा जाता है, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल। मेडिकल, हु आर ऑल हियर हु वांट टू परस्यू मेडिकल? सी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आपको रियलिटी बता देता हूँ, बाकी आपको क्या प्रोसेस और मेडिकल में जाने का वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सीट्स बहुत कम है मेडिकल में, ठीक है। there are only 83,000 seats in MBBS, and in government education institution there are only 42,000 seats in MBBS, ठीक है। तो government institution is affordable, but if you want to pursue in private education institution, they are also good, but the academic fee is very high. So if you can afford that, then it is good. Otherwise you have to strive to get into medical college sponsored by government. And then CLAT, law. Anyone who want to pursue law? Law, legal domain? No one? Fine, no problem. Law में भी selection ratio कम है, ठीक है। Only 5% of people get selected who appear in the entrance exam. So these are some facts that I thought कि important होगा आपको एक कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बताने के लिए। ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड। बिकॉज जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ता है वैसे वैसे लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, और जैसे अपने राइट्स के बारे में पता चलता है उनको ये भी पता चलता है कि हमारा राइट्स का वायलेशन कहाँ हो रहा है। तो पीपल स्टार्ट टू प्रेस फॉर देयर राइट्स। केसेस होते हैं, वो लोग कोर्ट में जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नीड अ गुड लॉयर to get you the justice. And अब जैसे privacy is becoming a very important issue over digital domain. Do you know कि आपका जो data है it is safe or not? आप जो social media use करते हैं, I guess many of you here are using social media. कितने लोग use करते हैं social media? Nice, honest answer. Good. सब यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे यूज करते हो, ठीक है। एनीवन, क्या कोई कुछ बोल रहा था? ठीक है, यस प्लीज समवन। So nothing much can you say that what was I talking about? I told about privacy in the system of digital domain. Yeah, you are right. प्राइवेसी जो है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, या आपके जो चैट्स है, या आपका जो सर्च हिस्ट्री है, ठीक है, वो अब कंपनीज प्रोसेस करेंगी। सो इट इज़ लीगल इफ दे टेक योर परमिशन। अगर वो इलीगली बिना आपका परमिशन लिए अगर वो प्रोसेस कर रही है, आपका प्राइवेट डेटा यूज़ कर रही है, तो इट इज़ वायलेशन ऑफ योर राइट। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इसके बारे में आपको रियलाइज होगा आपके राइट्स के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। तो यू नीड अ गुड लॉयर। देन साइबर लॉ, आर्बिट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा। फिर बैचलर इन आर्ट्स, तो बैचलर इन आर्ट्स कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट के बारे में। इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, राइट, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, in any subject you can go for bachelor in arts. So it is one of the popular choices. Why? Because कुछ लोगों को बचपन से रहता है कि उनको सिविल सर्विसेज में जाना है, उनको IAS बनना है, IPS बनना है, ठीक है। फॉर देम
it is one of the prime choices to pursue bachelor's in arts in any particular subject और वो फिर आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। तो कोई है यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज 1 और 2 3 नाइस। तो सी you can pursue any career option, ठीक है, but going with the bachelor in arts it is only a 3-year course and आपको जो relevant subject है जो पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन में वो आप उसमें डिग्री परस्यू कर सकते हैं and the exam it will become like easier for you to get through that examination। तो आप consider कर सकते हैं bachelors in arts and there are very good colleges where you can pursue, you know, Delhi University, JNU में तो क्या मास्टर्स ज़्यादा होता है, Tata Institute of Social Science and all that. So you can see, I'll give you the slide, you can again go through that slide. आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF and आप देख सकते हैं। बैचलर इन फाइन आर्ट्स, तो बहुत लोगों को हॉबी होता है डांसिंग का, परफॉर्मिंग आर्ट्स, यू नो, सिंगिंग, म्यूजिक, राइट, पेंटिंग। सो लाइक दीज आर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, वो परस्यू करने का। बहुत लोगों को रंगोली बनाने में अच्छा लगता है, स्केचिंग बहुत लोगों का हॉबी होता है, ठीक है, कुछ लोगों को ड्रामेटिक्स में जाना रहता है, फिल्म मेकिंग, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जिनको स्केचिंग पसंद होगा, कोई है या फिर जस्ट हॉबी के लिए ही अगर आप परस्यू करते हैं तो भी आप हाथ उठा सकते हो, और जो पहले हाथ उठाते वो नीचे क्यों कर दिए, फाइन। तो अगर आपको इसको एज अ करियर में कन्वर्ट करना है तो आप बैचलर इन फाइन आर्ट्स कंसिडर कर सकते हैं गोइंग अहेड। देन अब इवन IITs में भी ये सारे कोर्सेज होने लग गए हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, तो इट इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, यू कैन कंसिडर। देन बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी को पहले से शौक है कि नहीं मुझे मैनेजमेंट साइड में ही जाना है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में जाना है, मुझे हायर अकाउंट्स में जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर के, मुझे बोर्ड मेंबर बनना है उसका, तो इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन कि आप पहले BBA करें एंड उसके बाद फिर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन कंसिडर। एंड या इट इज़ वेरी वेल पेइंग जॉब that you can get through masters in business administration by going through BBA. Then hospitality sector, sir, can you scroll up? Yeah. Hospitality and hotel management, you can understand. Hospitality हो गया आपका, उसमें आपको टूरिज्म सेक्टर में आप जा सकते हैं, मैनेजमेंट, फूडिंग, लॉजिंग, है ना। टूरिज्म सेक्टर आज के टाइम पे काफ़ी फ्लोरिश कर रहा है, आप देख रहे हैं नए नए टाइप के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ओयो आ गया, जॉस्टेल आ गया, है ना, बहुत सारे अदर टाइप के ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टे, आप ट्रैकिंग का एक पैकेज बनता है, तो इस टाइप के ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें जाना है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। ये तो बस एक बेसिक आइडिया में दे रहा हूँ, आप इसके बारे में और सर्च करेंगे आपको काफ़ी चीज़ पता चलेंगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म सब लोग जानते हैं क्या होता है, पत्रकारिता, है ना। तो टीवी में एक पत्रकारिता होता है, एक पेपर वाला पत्रकारिता होता है, ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हो उसमें। सी, जर्नलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन अ डेमोक्रेसी, बिकॉज जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि वो सच्चाई को सामने लेके आए, और दैट इज वाई पीपल हु आर इन पावर, जो पावरफुल रहते हैं, दोज हु have power, political power, financial power, whatever, people used to fear journalists because you know एक investigative journalism होता है जिसमें आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह काम करके आप बहुत सारे डिटेल्स निकालते हैं, ठीक है, आप स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं, तो दैट इज वेरी ब्रेव जॉब दैट यू कैन गेट इनटू। फिर जर्नलिज्म के अलावा आप टीवी प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं। टीवी प्रोडक्शन मीन्स जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं या नेटफ्लिक्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं लोग, नहीं देखते, अच्छा करते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग बिग बॉस तो देखते ही होंगे, तो बिग बॉस का जो प्रोडक्शन होता है ना, मतलब पूरा पीछे का सेटअप या जो टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग वगैरह चीज होता है वो पूरा प्रोडक्शन के अंदर आता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो यू कैन गेट इनटू दैट, यू कैन सर्च अबाउट इट।
फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होगा लोगों को, है यहाँ पे कोई फैशन एंथुसियास्ट? नो वन? इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलेंगे तो पता चल जाएगा, राइट? नो प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर। उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं, है ना, फैशन कंसल्टेंट बन सकते हैं आप। इट इज़ अ वेरी वेल पेड जॉब दैट यू कैन गेट। सो नाउ दिस इज, सी द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसमें मैंने ट्राई किया है कि जितने भी मैक्सिमम करियर चॉइसेस जो है उसको इनकलकेट करने का, बट इसके अलावा भी कुछ चॉइसेस है, अगर आपको लगता है तो आप सर्च कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट कंप्लीट लिस्ट। देन कमिंग टू द कॉमर्स, तो कॉमर्स में जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग, दो चीज़ होता है कॉमर्स, बीकॉम विद मैथ, बीकॉम विदाउट मैथ। ओके, तो ओके, दोनों विद मैथ दिया क्या मैंने? I'm sorry, the first one is with math and the second one is without maths. So with math अगर आप परस्यू करना चाहते हैं बीकॉम, तो उसमें आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, राइट, इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सब चीज़ में आप परस्यू कर सकते हैं। एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका बहुत डिमांड है। जो हायर एक्लॉस में जो लोग बैठते हैं या जो ऑडिट में जो लोग जाते हैं, यू कैन आस्क, अगर आपके कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, ठीक है, या कोई सीनियर है जो इस फील्ड में है, तो आपको बता सकता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कॉर्पोरेट में। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड पेइंग जॉब। तो यू कैन गेट इनटू अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस, राइट, इकोनॉमिक्स, प्रोवाइडेड यू गेट इनटू अ गुड बी स्कूल, ठीक है, या आप जब बैचलर्स करेंगे तो आप कोई अच्छे कॉलेज से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। देन बीकॉम विदाउट मैथमेटिक्स, द सेकंड वन, उसमें आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जनरल मार्केटिंग, टूरिज्म, ट्रैवल सेक्टर, राइट। बैचलर इन इकोनॉमिक्स, फिर बैचलर प्लस LLB आप कर सकते हैं। जो लोग अगर कॉमर्स से निकल के जो लोग लॉ परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ये भी ऑप्शन है कि आप बैचलर्स इन आर्ट्स कोई भी एक सब्जेक्ट में कर ले, बी इट हिस्ट्री, पॉलिटी, एनी सब्जेक्ट, and then you can pursue law. Then BBA, I have discussed that earlier. Good colleges are like SRCC College, Shri Ram College of Commerce in Delhi, Hindu College and all. So you can just check it out. Going to the next slide. Yes, coming to the science. तो बहुत important है ये तो, and इसमें मैं आपको कन्वेंशनल ऑप्शंस के बारे में नहीं बताऊंगा, बट आई विल टेल यू अबाउट द अपकमिंग सेक्टर्स लाइक इन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कोविड के टाइम में देख चुके हैं, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर जो इक्विपमेंट्स बने, तो बायोटेक्नोलॉजी का उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी इज said to be the next IT sector of India. It is going to be a mass recruiter. Maybe अगर हर चीज़ सही तरीके से चला तो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है इंडिया में। एंड in India we are leading in pharmaceutical sector. जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर होता है या जो दवाइयों का डेवलपमेंट होता है या रिसर्च होता है, उसमें इंडिया लीडिंग पोजीशन पे है आज के टाइम पे। देन इन IT सेक्टर, अगर आप ब्रांच कंसिडर कर रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, तो सी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट डिमांड क्या है आज के टाइम पे। आने वाले टाइम में देयर आर लॉट ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दैट आर गोइंग टू कम, जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, राइट। ये आइडिया है किसी को? इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? एनीवन? नो वन? ओके, फाइन, कोई बात नहीं, आप जब जाओगे गोइंग अहेड यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तो इनका मार्केट में डिमांड है। रोबोटिक्स तो लोग समझते होंगे, रोबोटिक्स समझते हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट, आजकल हर चीज़ जो डेवलप होता है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। सोशल मीडिया हो गया, अगर आप फेसबुक में चाहते हैं जॉब करना या गूगल में चाहते हैं जॉब करना, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए।
ओके, बहुत लोग यहाँ पे एस्पायर कर रहे होंगे कि गूगल में जॉब करें या फिर कोई अच्छी टेक कंपनी में काम करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड एंड सर्च अबाउट. देन मैरीटाइम इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. अभी किसी ने देखा ब्लू स्पेस, क्या ब्लू ओरिजिन एंड वर्जिन गैलेक्टिक का लॉन्च, स्पेस लॉन्च किसी ने देखा? यू कैन रेज योर हैंड. स्पेस जो है ना, हम लोग स्पेस अभी तक खाली साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते थे, अब स्पेस को हम लोग टूरिज्म के लिए भी यूज करने वाले हैं इन कमिंग टाइम. तो दीज आर 2 कंपनीज जो इनिशिएटिव ली हैं स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए. तो अभी उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एक टिकट का कॉस्ट अराउंड 1.85 करोड़ कुछ है इन इंडियन करेंसी. तो नॉर्मल पर्सन के रीच से बाहर है, बट स्टिल जो स्पेस क्राफ्ट होता है या जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, हम लोग इसरो का लॉन्च तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, इसरो के जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो एक लॉन्च व्हीकल होता है जो स्पेस ऑर्बिट तक लेके जाता है सैटेलाइट को, उसको लॉन्च व्हीकल बोलते हैं. वो सब का डेवलपमेंट जो है वो आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मिलेगा. तो it was fascinating to me while I was in my school days, but ठीक है, नहीं परस्यू कर पाया उसको, but I'm telling you about all these things so that if anyone is interested you can go ahead with it, you can particularly prepare for it. And aeronautical में IIT Madras जो है, it is one of the leading college. Then material science, mechatronics मतलब robotics और mechanical integrated course होता है. So these are some new advanced field of science that you can consider in engineering. Then BA, BSc in economic statistics, ये आपके लिए relevant नहीं है. इंजीनियरिंग वैसे कितने लोग परस्यू करना चाहते हैं यहाँ पे? गुड नंबर ऑफ पीपल. नाइस नाइस. आप अपना जो भी चॉइस है आप उसको ज़ीरो डाउन करिएगा. आपको कौन सा फील्ड में जाना है, आपको आईटी इंडस्ट्री लेना है या कोर इंडस्ट्री लेना है, वॉट एवर इट इज़, तो जस्ट स्टार्ट सर्चिंग अबाउट इट. अभी कुछ डिसाइड मत करिए, ठीक है? आप अभी बस सर्च करिए, एक एक्सपोजर लीजिए, है ना? आप डिस्कवर करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. मेडिकल के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं. तो सी मेडिकल में आपको पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग थिंग. मतलब आपको 5 साल 6 साल लगता है MBBS से निकलने के लिए, एंड फिर अगर आप उसमें PG करना चाहते हैं तो और टाइम लगता है टू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर. तो अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास वो एप्टीट्यूड है, आप डेडिकेटेड है मेडिकल फील्ड के लिए, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू. एंड वी रियली नीड गुड डॉक्टर्स, बिकॉज इंडिया में वी हैव डर्थ ऑफ डॉक्टर. मतलब आज के टाइम पे वी हैव 1 डॉक्टर पर 1511 मैन, जो कि 1 डॉक्टर पर 1000 मैन होना चाहिए था. मतलब पर 1000 पर्सन, नॉट मैन, गलत है वो, ठीक है, पर 1000 पीपल अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्म. एंड नर्सिंग में अगर कोई जाना चाहता है तो यस, इट इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज उसका भी कमी है काफ़ी हमारे पास. एंड मेडिकल में एक चीज़ और इश्यू है कि जो डॉक्टर्स है वो ज़्यादातर जो जॉब है वो अपने वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे बड़े सिटीज़ है, वहाँ पे अच्छा इनकम होता है. तो आई थिंक इनकम शुड नॉट बी योर मेन कंसिडरेशन, रादर यू शुड लुक फॉर सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी. इनकम भी कंसिडरेशन होता है, बट ठीक है, एटलीस्ट आप ट्राई तो करो 2-3 साल आप रूरल एरिया में रह के सर्व करने का, राइट? देन साइंटिस्ट कोई बनना चाहता है यहाँ पे रिसर्च फील्ड में? एनीवन एल्स? ओनली 1 पर्सन? ओके फाइन. तो आप परस्यू कर सकते हैं. आप बैचलर इन साइंस, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है आप उसमें परस्यू कर सकते हैं. एंड फिर आप मास्टर्स जो है वो बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, आप वहाँ पे परस्यू कर सकते हैं. जैसे IISc हो गया, IITs हो गया, IISER हो गया, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. ये बहुत ही इलाइट इंस्टीट्यूशन है. अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो यू आर वन अमॉन्ग द मोस्ट इलाइट पर्सन इन द फील्ड ऑफ साइंस इन इंडिया, ठीक है?
It has given us product who have created institutions like ISRO, DRDO. ओके, तो आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. देन आर्किटेक्चर, जो लोग ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में जिन लोगों को इंटरेस्ट है, यू कैन कंसिडर दिस फील्ड ऑल्सो. ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, जैसे बहुत लोगों को देखते हैं आर्ट बनाते हैं, राइट. एक वो यूटेंसिल, एक पेंसिल आता है, क्या कुछ आता था जिसमें कि आप रोल करके कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाते थे. पता नहीं, ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज पीपल यूज टू कम एंड यूज टू टीच अस अबाउट ऑल दिस थिंग. तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो यू कैन कंसिडर आर्किटेक्चर एज अ करियर ऑप्शन. बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लीजिए, ठीक है. ये सिर्फ एक क्राइटेरिया, और भी क्राइटेरिया होते हैं. मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो ठीक है, एक चीज़ है, आपको अपना परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है. आप हो सकता है कि कोई आईआईटी में आप ना जा पाए, बट अगर कोई आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में, तब भी आप अपना परफॉर्मेंस जो है यू कैन कीप इट अप टू डेट, तो आप कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं. फिर बीएससी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अगर किसी को मैथ्स पसंद है, मैथ्स में चाहता है कि उसका इन डेप्थ स्टडी करे, या किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, राइट, क्वांटम फिजिक्स में किसी को इंटरेस्ट है. डू यू नो अबाउट क्वांटम फिजिक्स? एनीवन? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स? नो वन? नो प्रॉब्लम, ठीक है. ये सब आप बता सकते हैं कुछ भी, थोड़ा बहुत, एनी रफ आइडिया? It is the study of smaller than atoms. Please repeat again. It is the study of the science which is smaller than atoms. हाँ, साइज स्मॉलर देन एटम, यू आर राइट. एंड उसका एप्लीकेशन होता है क्वांटम फिजिक्स में. आपको उसका पूरा स्टडी करना पड़ता है, एंड देन उसका एप्लीकेशन होता है, जो हम लोग आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे. So it is good. Then research scientists and all. So please roll down. So yeah, apart from these so-called conventional option, there are other options. लोग एनडीए में जैसे आई सॉ सम 3 or 4 people who raised their hand for armed forces. तो एनडीए में आपको जैसे अगर आप एयरफोर्स और नेवी में अगर जाना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव योर बैकग्राउंड फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथ्स. मतलब आपको क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ्स रखना पड़ेगा. सो इस चीज़ को कंसिडर करिएगा अगर किसी को एयरफोर्स या नेवी में जाना है तो. एंड इन आर्मी कुछ डिपेंड नहीं करता है, आप कोई भी स्ट्रीम से. खैर अब तो सब मर्ज होने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट पर्टिकुलरली जिनको नेवी और एयरफोर्स में जाना है वो ध्यान रखिए कि फिज़िक्स और मैथ्स आपका होना चाहिए क्लास 12 में. स्पोर्ट्स में कोई है यहाँ पे प्लेयर जो इंटर स्कूल खेल के आया हो या रीजनल? एनीवन? इन विच स्पोर्ट? बास्केटबॉल? गुड. एनीवन एल्स? Yes, please. Sir, skating. Which? Sir, skating. Skating? कहाँ खेले आपने? इंटर स्कूल, रीजनल लेवल, किस लेवल पे? Sir, I have been selected for the zonal level at Bhubaneswar. अरे, it was nice, really nice. Congratulations. Thank you, sir. तो अगर आप परस्यू करना चाहते हो स्पोर्ट्स में अपना करियर, ठीक है. और देखो स्पोर्ट्स में करियर ज़्यादा लंबा नहीं होता है बिकॉज उसमें लिमिटेशन होता है, आपका फिजिकल लिमिटेशन होता है, बॉडी का लिमिटेशन होता है. ठीक है, यू कैन रिमेन एक्टिव टिल द एज ऑफ 40-38. बहुत सारे प्लेयर उसके बाद रिटायर कर जाते हैं. बट वो जो पीरियड रहता है ना, वो आपका बहुत अच्छा पीरियड रहता है. ठीक है, यू कैन रिप्रेजेंट योर कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल. ओलंपिक्स में हम लोग देख रहे हैं मतलब पीपल एज यंग एज 19 year old, 23 years old, ठीक है, जो आपसे मे बी सिर्फ आपके कितना होगा, आपका एवरेज एज 16 होगा, 15-16. आपसे 3 साल सीनियर लोग जो है वो ओलंपिक्स में जा रहे हैं. अदिति अशोक, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन गोल्ड. तो व्हेन शी वाज 19 years old, वो फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में गई थी, वो इंडिया को रिप्रेजेंट की थी. तो इट वाज रियली प्रेस्टिजियस थिंग दैट यू कैन ऑप्ट फॉर. तो
अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपने स्कूल में जो आपके फैकल्टीज़ है आप उनसे कंसल्ट करिए। आप जो जोनल लेवल पे जो फेडरेशन होते हैं, अगर आप जैसे कह रहे थे आपने बास्केटबॉल में खेला है, तो आप जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो फेडरेशन होते हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल गाइड यू अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जब आप फेमस हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, तो रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा आता है। यू विल मेक अ गुड फॉर्चून। MS धोनी वी ऑल नो, राइट। इसमें स्पोर्ट्स में सिर्फ स्पोर्ट्स प्लेइंग एक ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें आप अगर चाहे तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड परस्यू करेंगे तो आप न्यूट्रिशनिस्ट का भी उसमें एक कोर्स होता है, अगर कोई परस्यू करेगा तो वो स्पोर्ट्स में भी हेल्प कर सकता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अलग ही डोमेन है, तो यू कैन सर्च अबाउट इट। डिस्टेंस एजुकेशन, सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि बहुत सारे बॉटलनेक्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इशू हो गया या फैमिलियल कंसिडरेशन हो गया, जिससे कि लोग अपने जो हायर एजुकेशन है, बैचलर्स एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाते कॉलेज में जाके, तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन इज एन ऑप्शन यू कैन परस्यू। सर कैन वी गेट टू दिस स्लाइड? यस, तो there is an open university where you can consider getting a degree and उसका डिग्री काफ़ी ज़्यादा मान्यता है उसका, it will be accepted in every field and in everywhere। तो कुछ लोग जैसे UPSC करना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, बट उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है कि वो कोई कॉलेज से, किसी अच्छे कॉलेज से बैचलर्स कर सके, तो दे कैन ऑप्ट फॉर IGNOU, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। वहाँ से आप कोई डिग्री करिए एंड उसके बाद आप फिर अपना सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन डिप्लोमा भी एक चॉइस है जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं या जो लोग को ज़रूरत है अर्ली एम्प्लॉयमेंट का टू सपोर्ट देयर फैमिली एंड ऑल, तो दे कैन ऑप्ट फॉर डिप्लोमा थ्रू एनी पॉलिटेक्निक, गुड पॉलिटेक्निक, एंड आफ्टर 3 year कोर्स यू विल बिकम एलिजिबल टू गेट अ गुड जॉब, राइट। सो आप डिप्लोमा कंसिडर कर सकते हैं बहुत सारे लोग। देयर आर गुड पॉलिटेक्निक कॉलेज लाइक किड्स पॉलिटेक्निक, जामिया मिलिया इन न्यू दिल्ली, सो दीज आर सम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स दैट यू कैन कंसिडर। अगर डिप्लोमा में किसी को है कि उसको इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है, बट लाइक समवन आइडेंटिफाइड कि नहीं मुझे पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग परस्यू करना है, या समवन आइडेंटिफाइड कि मुझे पर्टिकुलरली सर कैन यू रोल मुझे आर्ट्स में डिप्लोमा करना है, तो आप राइट आफ्टर क्लास 10 यू कैन गेट इनटू पॉलिटेक्निक एंड आई हैव टू डू सम रिसर्च अबाउट इट, बट यू कैन चेक अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। सो व्हाट हैपन इन डिप्लोमा कि आपका 3 साल का कोर्स रहता है, उसके बाद आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है एंड देन यू कैन चूज टू ऑप्ट फॉर फर्दर एजुकेशन, या फिर आप जॉब के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। Yeah, now comes entrepreneur and innovator. These people are very important for supporting, for giving jobs, for supporting economic growth of the country. So, if someone have this acumen of, coming up with new ideas, new thing, new product, so they can become future entrepreneur. So, entrepreneur ऐसा नहीं होता है कि आज आप 1 घंटा बैठ के सोचो कि अच्छा आज मैं 1 घंटा टाइम देता हूँ, मैं सोचता हूँ कुछ आइडिया आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। टेक सम टाइम, आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि आप किस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, आप क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, विथ वेरी मैनी इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़, जो कि आपका मार्केट को कैप्चर करेगा। दैट समथिंग दैट मेक्स योर प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द मार्केट एंड इट शुड ऑल्सो बी अफोर्डेबल, सो दैट कि आपका मार्केट आउटरीच और बढ़े एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट करें और आपको भी इससे बेनिफिट होगा, आप जॉब प्रोवाइड करेंगे। सो दीज पीपल आर काइंड ऑफ ट्रस्टी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। कोई है यहाँ पे जो कंसिडर कर रहा है आने वाले टाइम में कि स्टार्टअप चालू करे? कोई कभी सपना भी देखा है इस चीज़ का? एनीवन? नो वन?
हाँ, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को मत देखो, यही सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर. यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, राइट. तो इसमें नेसेसरी एटीट्यूड आपका, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपका होना चाहिए. ठीक है, अगर आप रिस्क ले रहे हो, यू आर टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क, यू आर टेकिंग मार्केटिंग रिस्क एंड ऑल, तो इट इज़ अ गुड थिंग दैट टेल्स कि हाँ आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक्यूमेन है. एंड ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट इट इज़ रियली रिवॉर्डिंग. अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो वो एक बहुत ही रिवॉर्डिंग चीज़ होता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपको देगा. वी ऑल नो स्टोरी अबाउट सचिन बंसल, विनी बंसल. कोई जानते हैं इनके बारे में? फ्लिपकार्ट के ये लोग क्रिकेटर थे. फ्लिपकार्ट जानते हो? जानते हो ना? ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया. एप्पल लोग जानते होंगे, स्टीव जॉब्स जान रहे हैं? हाँ, तो स्टीव जॉब्स वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही था. ठीक है, तो you have to come up with new ideas, new products, right? You have to be innovative. Next is government sector. I guess some of you wanted to get into the government sector. जैसे कुछ लोग सिविल सर्विसेज के लिए हाथ उठाए थे, और भी है जो कोई यहाँ पे है जो जुडिशरी में जाना चाहता है. जुडिशरी या लीगल तुम दिखा नहीं, हो सकता है ऑनलाइन कुछ लोग होंगे. ओके, हाँ 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 हाँ, इसलिए पता नहीं चल रहा. यस यस यस, या फॉर दैट आपको सिविक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको स्पेशल इम्फेसिस देना पड़ेगा. किसी को इंटरेस्टिंग अगर लगता होगा तो यू कैन सर्च लिटिल बिट मोर एंड यू विल अंडरस्टैंड. सो गवर्नमेंट सेक्टर में आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन दैट यू कैन गेट इनटू. IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज. एंड फॉरेन सर्विसेज में जो इंडिया के बाहर मिशंस होते हैं, एम्बेसीज होते हैं, या जो यूनाइटेड नेशन में मिशंस होते हैं, आप वहाँ पर आपको नियुक्त किया जाता है. तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस जॉब दैट यू कैन गेट इनटू. यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ओवरसीज, राइट. फिर उसके बाद कुछ लोग पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं. मीन्स आप जब इंजीनियरिंग करेंगे या कोई भी आप मे बी अगर आप BCom भी करते हैं तो ऑप्शन आता है आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आने का. जैसे कोल इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो यू कैन गेट थ्रू दैट एग्जाम एंड यू कैन गेट इनटू पब्लिक सेक्टर. देन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज विच आई हैव क्लियर्ड. तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इज बेसिकली अबाउट लुकिंग इनटू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. इंटरनल सिक्योरिटी लाइक आपका दंगा फसाद जो होता है, राइट, या फिर कोई टेररिस्ट टाइप सिचुएशन हो गया, राइट, या इलेक्शन ड्यूटीज़ हो गई. तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल सिक्योरिटी थिंग विच यू हैव टू लुक एट. तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन दोज हु आर कंसिडरिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेज. एक आपका जो डिफेंस फोर्सेज है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, दैट इज़ फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी. जो आपका इंडिया का एक्सटर्नल बाउंड्री है उसके बाहर से अगर कोई थ्रेट आता है तो दीज फोर्सेज डील विद दैट एक्सटर्नल सिक्योरिटी. बट इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग सुने होंगे CRPF, ITBP. एनीवन हर्ड ऑफ देम? नो वन? वन गर्ल आई कैन सी. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. देन जो लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड है दे कैन ट्राई फॉर इंडियन इकोनॉमी सर्विसेज. आप बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ है वहाँ पे जो बजट बनते हैं उसमें काम आता है. तो दिस ऑल थिंग जब आप आगे जाएंगे आप एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चल जाएगा. एंड RBI एंड ऑल. सो दीज आर द थिंग दैट यू कैन गेट इनटू गवर्नमेंट सेक्टर. ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड सर. So yeah, these are some interesting options that I came up with when I was designing this PPT. तो मैंने सोचा था कि मैं अपने हिसाब से कुछ लिखता हूँ जो करियर या जो फ्यूचर में प्रोफेशन आई कैन टेक अप. तो फॉर मी
one of the important thing was social environment human right activist. मतलब आप किसी सोशल कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, यू आर रनिंग एन NGO फॉर एनी सोशल कॉज, ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी अ गुड थिंग फॉर द सोसाइटी. आप ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जो लोग दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग देयर वॉइसेस, हु डोंट नो अबाउट देयर राइट्स, ठीक है, तो आप उनके कॉज के लिए वर्क कर रहे हैं. तो सोशल एक्टिविस्ट. एनीवन नो अबाउट कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी? नो वन? भारत रत्न बोले जानना? या प्लीज. Sir, he has fought for the right of children. बचपन बचाओ आंदोलन, राइट. वेरी गुड. तो यस, वन अवेयर सिटीजन, इन्फॉर्म सिटीजन, गुड. तो कैलाश सत्यार्थी जो थे, इन्होंने अराउंड 88,000 स्टूडेंट्स, 88,000 बच्चों को ट्रैफिकिंग या जो चाइल्ड लेबर होता है उससे बचाया, एंड ही रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज फॉर दैट. तो ये यू कैन सर्च अबाउट हिम, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. इट डजंट मैटर कि आपको एक्टिविस्ट ही बनना है, आप नॉर्मल आप कुछ भी परस्यू करना चाहते हो, बट यू शुड नो अबाउट दिस काइंड ऑफ पीपल. दीज आर वेरी ग्रेट पर्सनैलिटीज. मेधा पटकर, राइट. तो अभी हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा अबाउट मेधा पटकर. देन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, आई वॉज जस्ट वॉचिंग 3 Idiots. तो उसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक था ना, 3 Idiots देखा है लोगों ने? जोर से बोलो यार, मेरे को आवाज नहीं आता है. भूखे हो क्या? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में हम लोग देखते होंगे, नैट जियो चैनल लोग देखते होंगे, डिस्कवरी देखे होंगे, राइट. तो वहाँ पर फोटोग्राफर या वहाँ पे सिनेमेटोग्राफर लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. यू नो, ऑल दोज गुड विजुअल्स, दोज क्लोज मूवमेंट्स that we used to watch because of these people. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. यू कैन कंसिडर अगर किसी को फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्ट है तो. देन ऑटोमोबाइल टेस्टिंग, रेसिंग, ये मुझे खेलना अच्छा लगता था, तो मैं बीच में कंसिडर भी किया था. बट एथिकल हैकर, वन ऑफ माई कजिन इज एन एथिकल हैकर. सो अगर IT फील्ड में किसी को इंटरेस्ट है एथिकल हैकिंग वगैरह में, हैकिंग समझ में आता है? क्या होता है हैकिंग? एनीवन? कुछ भी बता सकते हो, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए, हिंदी इंग्लिश किसी भी बता दो. एनीवन? या प्लीज. Getting into someone's computer or doing some work without permission on their device. Yeah. So it is about accessing any database, ठीक है, चाहे वो किसी का कंप्यूटर हो, किसी का सिस्टम हो, या फिर कोई कंपनी का डेटाबेस हो. एंड एज एन एथिकल हैकर विद द बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट और एनी लेजिटिमेट अथॉरिटी, आप उसमें हैकिंग कर सकते हो फॉर सम गुड कॉज. यू नो, इंटेलिजेंस सर्विसेज जो होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सुने हो किसी ने? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. एनीवन? रॉ इंडिया की? हाँ, या प्लीज. कैन यू टेल इट लाउड फ्रॉम देयर ओनली? RAW is an organization which collects data from all over the world or India itself for any threats. Precisely. Yeah, for the security purpose. As man said, for the security purposes, for the security apparatus of India, for the security sovereignty of India. Okay, तो बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, बहुत रिस्की जॉब भी है, ठीक है. तो देयर एथिकल हैकर लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड जाने का कोई तरीका नहीं है. फर्स्ट यू हैव टू गेट इनटू एनी फोर्सेस और इनटू पुलिस सर्विसेज, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन गेट इनटू दिस इंटेलिजेंस bodies, financial intelligence unit and all. Then share market business. स्टैंड अप आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो? किसी का नाम पता है?
बता दो यार। नहीं, कपिल शर्मा इज नॉट अ स्टैंड अप, राइट? अभिषेक उपमन्यु एंड प्लीज सब लोग एक साथ बोले तो पता नहीं चला। Zakir Khan, right? So now what is happening is people are taking these hobbies as their full-time career, ठीक है? उसमें पॉपुलैरिटी भी है और आपको मतलब ये जो आपको पसंद है आप वो चीज़ कर रहे हो और रियली गिव्स यू द सेटिस्फैक्शन, ठीक है? आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो, राइट? तो स्टैंड अप आर्टिस्ट, और आज के टाइम पे ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया, यू हैव टू वर्क अ लॉट, राइट? अगर अच्छा कॉमेडी नहीं मारे, अच्छा जोक नहीं मारे तो ख़त्म। फिर जो लोग एनालिसिस करना अच्छा लगता है, जो लोग पेपर पढ़ते हैं ना, कुछ लोग जो लोग हाथ उठाते हैं, कैन यू रेज योर हैंड वंस अगेन सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई? या राइट। तो उन लोग को धीरे धीरे आपको ना चीज़ों की एनालिसिस करने का एक आदत हो जाएगा। व्हेन यू सी सम न्यूज़, ठीक है, एनी डेवलपमेंट, तो यू स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग, यू विल स्टार्ट रिलेटिंग थिंग विद द द पास्ट, यू कैन थिंक कि आगे इन गोइंग अहेड व्हाट would be the course of action, maybe in policy, maybe in politics. Right now I think उतना तो समझ नहीं आएगा, बट ये एनालिस्ट वाला आप कंसिडर कर सकते हो। पॉलिसी एनालिस्ट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, जिससे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो उसमें पॉलिसी एनालिस्ट लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये लोग हर चीज़ को एनालाइज करके दे यूज्ड टू कम अप विद सम रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, एंड फिर गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करती है एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो पॉलिसी एनालिस्ट, डिफेंस का स्ट्रैटेजी जो होता है डिफेंस फोर्सेस में, तो इसके स्ट्रैटेजी एनालिस्ट आप बन सकते हैं। पॉलिटिशियन किसी को बनना है? कोई नहीं, क्यों? वी नीड गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, तभी तो हेल्दी डेमोक्रेसी होगा। कोई कभी सपना भी नहीं देखा गलती से? No issues, ठीक है, बट पॉलिटिक्स इज वेरी गुड थिंग। बुक राइटर, ऑथर आप बन सकते हैं। अगर आपको लिटरेचर में शौक है, आपको लैंग्वेज में शौक है, तो यू कैन गो फॉर बुक राइटिंग। ऑथर चेतन भगत लोग जानते होंगे, कुछ लोग, है ना? तो उन्होंने पहले IIT किया, उसके बाद फिर IIM अहमदाबाद गए और उसके बाद फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बुक लिखना चालू कर दिए। ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज में कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा, जो लिटरेचर होता है, साहित्य जिसको बोलते हैं, हिंदी कोई लैंग्वेज का, या इंग्लिश, या समवन वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, तो उसके लिए आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा देयर इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, राइट? तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज में आप अपना बैचलर परस्यू कर सकते हैं, और उसमें स्कोप ये है कि यू कैन बिकम अ टीचर, ठीक है, यू कैन बिकम एन इंटरप्रेटर। हम लोग देखते हैं जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर व्हेनेवर ही यूज्ड टू विजिट एनी कंट्री जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, तो वहाँ पर एक इंटरप्रेटर का ज़रूरत होता है, तो वो फॉरेन लैंग्वेज में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो यू गेट टू वर्क विद सच सच प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटीज़, वहाँ पे आप काम आ सकते हैं। इंडियन फॉरेन एम्बेसीज एंड ऑल, वहाँ पे बहुत ज़रूरत होता है लैंग्वेज इंटरप्रेटर का। एंड आई मस्ट टेल यू कि वो जो जॉब होता है इट इज़ वेरी हाईली पेइंग, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छा, अगर आप चाहते हैं इनकम कमाना तो यू कैन गेट टू दैट। अगर आप कोई अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चरर बन जाते हैं तो भी आप यू कैन मेक सम गुड फॉर्च्यून। देन मर्चेंट नेवी, जो मर्चेंट नेवी सिविल नेवी होता है, जो नॉर्मली कार्गो को शिपिंग करते हैं, तो उसमें भी जो लोग जाना चाहते हैं, अल्दो ये ऐसा करियर है जिसमें जो लोग इंटरेस्टेड है वही लोग जा पाएंगे, बिकॉज इसमें सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप घर से 3 महीना 4 महीना के लिए कट ऑफ रहते हैं, बट इट इज़ वेरी हाईली पेइंग जॉब। शेफ, कुकिंग किसी को पसंद है यहाँ पे? नाइस। कोई शेफ बनना चाहता है? मास्टर शेफ इंडिया में जाओ, कोई जाना चाहता है?
ट्राई मार लेना कभी यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो शेफ में भी आप ट्राई कर सकते हो, ये सब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड है। देन इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो सोशल मीडिया आज तो हम लोग देख रहे हैं लाइक इट इज़ नॉट ऑब्लिवियस, मतलब एवरीवेयर इट इज़, ठीक है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ऐसा नॉनसेंस वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं, वो कुछ है, क्या नाम है यार, नाम भी भूल गया। तो हाँ, कौन कौन किसी ने कुछ बोला? एनीवन? सर एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, मुझे समझ नहीं आया, बट ठीक है, जो तुम बोले सही बोले। सी यू कैन बिकम कंटेंट मेकर, ठीक है। जैसे द वायरल फीवर TVF लोग जानते होंगे, वायरल फीवर के प्रोडक्शन जो आते हैं। अभी कुछ नया आया था, एक एस्पिरेंट आया था, फिर उसके बाद IIT का जो कोचिंग होता है कोटा में, कोटा फैक्ट्री देखे होंगे, ठीक है। तो दीज आर सम गुड कंटेंट मेकर्स यू कैन ट्राई फॉर, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अच्छा, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग छोड़ के परेशान हो गए, फिर वो लोग, वो भी IIT से। तो एक आप लोग जानते होंगे बिस्वा कल्याण रथ को। बिस्वा कल्याण स्टैंड अप कॉमेडियन है, नहीं, इज ऑल्सो फ्रॉम उड़ीसा, नालको कॉलोनी से था शायद, आई गेस। तो he was an IITian from IIT Kharagpur. I don't know उसका एग्जैक्ट ब्रांच क्या था, but he left his job. उसको शायद जॉब मिला था कि नहीं मिला था, I don't know. But after some 3-4 months, he switched to full-time career option as stand-up artist and influencer. Travel blogging, आप घूम के ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ट्रैवल ब्लॉग लोगों ने देखा होगा, लद्दाख ट्रिप मारते हैं लोग, ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं अपना, राइट। एक मुंबई का निखिल है, कोई जानता है? जानते हो ना? तो या ये सब ट्रैवल ब्लॉगर रहते हैं। मूवी क्रिटिक्स, फूड क्रिटिक्स, है ना। देन मॉडलिंग, अगर कोई मॉडलिंग में सोच रहा है, इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। मॉडलिंग में जो फॉर फीमेल जो ब्यूटी पीजेंट का जो कॉन्टेस्ट होता है, देयर यू कैन रिप्रेजेंट इंडिया, राइट, एट इंटरनेशनल लेवल। Then scientist, I guess only one girl I saw. Yeah, so you can become a scientist, and you know there are some premier institution in India that you can get into, like ISRO, DRDO. तो ये कुछ आपके choices हैं। ये तो मैंने बनाया है, मैंने क्यूरेट किया है, बट इसके अलावा भी what I would recommend you going ahead, किसी प्रेशर में मत आना, ठीक है। Take your time. अभी आपका एज जो है यहाँ पे ऐसे डिसाइड करने वाला नहीं है कि हाँ मेरे को यही करना। अगर कोई डिसाइड कर लिया है एंड ही इज वेरी मच और शी इज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट, तो ठीक है। बट अगर अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, ठीक है। व्हाट यू डू, आज आप घर जाके 15 to 20 ऐसे चॉइसेस को नोट डाउन करना जो आपको फैसिनेट करते हैं। लाइक आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपको सोचते हो कि भाई पायलट कैसे बनता है, या पायलट एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, तो यू कैन राइट डाउन। तो ऐसे आप करके अराउंड 15 to 20 चॉइसेस या प्रोफेशन का ऐसे लिस्ट बनाओ। देन व्हाट यू डू, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग और सर्चिंग और गूगलिंग अबाउट ऑल दोज चॉइसेस दैट यू हैव मेंशन्ड। वो 15 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि 150 का कुछ लिस्ट बना दिए और फिर वो पेपर पता नहीं कहाँ फेंका हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, टेक इट सीरियसली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे में बनाना है, 1 दिन में बनाना है। आप 1 वीक भी टाइम ले सकते हो। आप कंसल्ट करो अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर से, अपने मेंटर से। आपके कोई सिबलिंग होंगे, कोई आपसे 7 या 8 साल बड़ा, कोई आपका भाई बहन जो होंगे, आप उनसे कंसल्ट करो। कोई प्रेशर नहीं होता है कि आप अगर करोगे तो ही हम आपको गिफ्ट देंगे, या हम आपको तभी समझेंगे कि आप सक्सेसफुल हो। सक्सेस का कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा, आप अपने सीनियर या आपके कोई 6 या 7 साल बड़े आपके कोई कज़न है या
Yeah, please. गुड आफ्टरनून। मैं जब क्लास 3 में था तब से मैंने सोचा था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा। अभी मुझे ये पता, आपने जो बोला कि जिसको मतलब नेवी या फिर एयरफोर्स में जाना है उसको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ता है। मुझे आर्मी बनना है, ये मेरा मतलब क्लास 3 से मेरा ये गोल एम्बिशन सब कुछ है मेरा। मुझे बता सकते हैं कि मैं 10 के बाद मतलब क्या करना होता है आर्मी के लिए? आपको पर्टिकुलरली आर्मी में जाना है? यस। या एयरफोर्स या आर्मी पर्टिकुलर है ना आपका? यस। ठीक है, तो देखो आर्मी आप जब 12th हो जाएगा उसके बाद एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें आप अपियर करोगे, एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका 5 दिन का एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज कराया जाता है, ठीक है। उसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है जिसमें कि वो आपका परसेप्शन एबिलिटी देखते हैं। आपको एक फोटो दिखा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि 3 मिनट के अंदर इसके ऊपर एक स्टोरी लिखो, ठीक है। तो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। कि अगर कोई सिचुएशन है, मतलब केस स्टडी आप ले लो कि ऐसा कोई सिचुएशन आ गया है ना, ऐसा कोई इमरजेंसी आ गया, या समझ लो आप कहीं बैठे हो और आपको पता चला कि यहाँ पे टेरर अटैक हुआ है, तो इमीडिएटली आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे उस चीज़ को, है ना। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग जो है ये आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर आपका परसेप्शन एबिलिटी, आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो ट्राई टू लुक इन अ पॉजिटिव व्यू, ठीक है। वो लोग पिक्चर आपको जो दिखाएंगे वो बहुत एम्बिगुअस रहेगा कि कोई बैठ के लोटा बना रहा है, कोई बच्चा दौड़ रहा है ना, इस टाइप का कुछ फोटो रहेगा, ठीक है। उसको देख के आपको ऐसा जो ऐसे रहता है, कुछ कंटेंट रहता है, वो आपको लिखना रहेगा जिससे कि पता चले कि नहीं आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, ठीक है। और आप जो है मल्टीपल सिचुएशन इसके बारे में सोच सकते हैं, मतलब यू कैन गिव डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू दैट सिचुएशन। नॉर्मल पर्सन क्या लिखेगा कि हाँ ये मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक लेडीज है जो लोटा लेके जा रही है और एक बच्चा भाग रहा है, बस तो इतना लिख दिया। बट आपको उसमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना, कि क्या पता है यहाँ पे पानी का कमी हो इसलिए लोग लोटा लेके जा रहे हैं, यू नो वो जो होता है पॉट लेके जा रहे हैं एंड ऑल, है ना। तो इस टाइप से, और उसमें आप जितना इनोवेटिव हो सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो ये आपका फर्स्ट जब आप एसएसबी में जाते हो तो ये पहला राउंड होता है, इसको जब आप क्लियर करोगे तभी आप फिजिकल राउंड में इंटर कर पाओगे। फिजिकल राउंड में व्हाट हैपेंस कि आपका एक टीम बना दिया जाता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, लाइक 8 से 10 लोग का टीम होता है, स्क्वाड होता है, ठीक है। आपको हमेशा 5 दिन तक उन्हीं लोग के साथ रहना है, जितने भी एक्टिविटीज होंगे उसमें आपके स्क्वाड के साथ रहना है। वहाँ पे आपको शो करना है आपका लीडरशिप स्किल, कि आप उस स्क्वाड को किस तरीके से लीड कर सकते हो, है ना। कोई भी हर्डल जो आएगा, है ना, उसमें आप कैसे लीड कर सकते हो, तो लीडरशिप स्किल आपको वहाँ पे दिखाना है। तो उसके बेसिस पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, राइट। तो पर्सनैलिटी में जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप जो चीज़ बोल रहे हो उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, है ना। यू हैव टू फर्म विथ योर स्टैंड। आपका स्टैंड कुछ भी हो सकता है, सपोज एक कोई इशू दे दिया आपको, है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल से एक कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, ठीक है, जहाँ पर आपको अगर आपने एक्शन नहीं लिया, इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बट अगर आप एक्शन लीजिएगा तो भी उसमें सिविलियंस जो है उनका जान खतरे में होगा, उनका जान जा सकता है। तो आप ज़रूरी नहीं कि इसमें आप एक पर्टिकुलर स्टैंड ही लीजिए, लेकिन आप जो भी स्टैंड लीजिएगा, ठीक है, उसको आप जस्टिफाई करिएगा। नेगेटिव है